I'm from Turkmenistan. Oh, I love Turkmenistan. Are you always telling it is near Kubristan, huh? Like last time. श्रद्धा, आपके बारे में सुना है कि रिलीज से पहले आपका पेट खराब हो जाता है। तभी लास्ट टाइम जब शूट पे आए 3 बार गई श्रद्धा। अर्चना, आपको पता है नील बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। Really? 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जाने। मतलब थैंक यू। अच्छा प्रभास सर, हमने एक बात सुनी आपके बारे में कि आपको शादी के लिए 5000 से ज्यादा प्रपोजल्स आए। इज इट ट्रू सर? I don't know sir, maybe it's a rumor. हमारे तो एक ही रिश्ता है, हमने उसी से शादी कर ली। First of all, I would like to say thanks to Prabhas sir because I know sir you don't do promotions in South. You have huge fan following, but learn something from Shraddha. अच्छा। She do 4 films in a year and come 8 times. She come 8 times, 2 times Papa comes. And also with Mosi. So मैं श्रद्धा आपके लिए ये मकान खाली, इसमें ना कपूर निवास लिख देते हैं, आप तो यहाँ पे शिफ्ट ही हो जाओ, क्योंकि इधर वाला हमने सोनाक्षी को दे रखा है। हाँ, वो भी। और ये वाला तो अक्षय कुमार से हम खुद रेंट पे ले रहे हैं। तो प्रभास सर, आप बहुत ये जाते नहीं हैं, प्रमोशन नहीं करते हैं ज्यादा, बिकॉज जरूरत ही नहीं होती है इनको। पर प्रभास सर, जब इतने सारे फैंस आपका नाम चिल्लाते हैं, हाउ डू यू फील? Yeah, very happy sir. Wow. We also have some international fans. See? Hi girls. How are you? What's your good name, beautiful? Hello, sir. My name is Farahnas Khan. Hello. And I'm half Persian, Italian, Indian. Oh. Word level की integration. And So I you're love based in... India a lot Thank because you. I love my country. Oh, so sweet. Thank you. Thank you. So And- I love you and your family. Oh yeah, bro. You met my mom? So yes. You were talking with my mom? She's कैसे बात की? उनको तो हिंदी भी नहीं आती है। तो इंग्लिश तो हमारी फैमिली में किसी को नहीं आती है। So how you guys were talking with each other? One another international No, art. I talk Hindi and Urdu and a little bit Punjabi. I don't know. How you are so fair, like boiled egg. I mean, Boiled like Because I boil in India. I boil. you're very beautiful. Welcome, and she's your cousin, friend. Hi Kapil. Hi. I'm from Turkmenistan. Oh, I love Hi Turkmenistan. Prabhas. Hi Shraddha. Are you always telling this? And Yeah. you never know where is this country? Yeah, Are you I know. always telling, Turkmenistan, of course. It is near Kubristan, huh? Like last time. I know very well about Turkmenistan. It's out of India. So it's your third visit to our show? No, second time. Second time? Yes. Before your show was from another channel. Yes. Oh, सारी history पता है लड़की को. Obviously. तुम्हारी हिस्ट्री पता है मुझे, ये चैनल के क्या? Guys, देखिए हमारी पॉपुलैरिटी, तुर्कमेनिस्तान वाले हिंदी बोल रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके, शुक्रिया. Because we love you, Kapil. Love you too, thank you. I'm And married, but came still I love you. today because of you. I came because of you and Prabhas. I love you so much. You are amazing. Thank you so much. Prabhas, you have huge fan following in girls. I like your kismat. So I think you have to do in Bollywood also few movies. Yeah. Yeah, not in is a- Telugu only. Okay. Saho is a Bollywood movie also. हाँ, So is in Hindi, in Telugu, in so many other languages. Shukriya, thank you so much. Thank you, Kapil. Prabhas, Shraddha, please have a seat. प्रभास सर, साहो का मतलब क्या होता है? In Sanskrit, it's like Jai Ho. ओके, जय हो. संस्कृत में जय हो. Something like that. साहो. और फिल्म Praise. साहो का ट्रेलर इतना खूबसूरत है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए. Thank you. और उसके वीडियोज इतने वायरल हो रहे हैं.
गाने इतने पॉपुलर हो रहे हैं। वाओ। अरे जितने यहाँ पे हमारे दर्शक बैठे हैं, प्रभास का पूरा नाम कौन कौन जानता है? प्रभास तो सब जानते हैं। अगर आपने पूरा नाम लिया तो आपको हम एक गिफ्ट देंगे। वो इनको माइक दे दीजिए। वेंकट नारायण। हाँ जी। Easy right so You far. had your Prabhas. breakfast? थोड़ा थोड़ा Okay. right. थोड़ा थोड़ा right. So in the other studio there is going Indian Idol. You can go there. यार हाथ तो इतना राजू कॉन्फिडेंस से पल्ली। खड़ा किया आपने। ओके कोई बात नहीं, बैठ जाइए। और किसने हाथ खड़ा किया था? उस तरफ इनको माइक दे दीजिए। You have my photo on your T-shirt. Yes, sir. Oh, bro. That's for you and Ginny ma'am. Thank you. Love you. शुक्रिया। कहाँ से आए आप? सर मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से। जी, सर। संतरे नहीं लेके आए? सर लेके आया हूँ। पक्का लेके आए हो? संतरे की बर्फी? अच्छा। सब लोग नागपुर से आए हैं? जी सर। अरे बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जी तो आप प्रभास का पूरा नाम लीजिए जरा। वेंकट नारायण प्रभास राजू उप्पलपट्टी। Almost right. ऑलमोस्ट। Almost right. ओके सो एक ट्राई और करते हैं। अगर किसी ने पूरा एग्जैक्टली ले लिया तो गिफ्ट उसका। धन्यवाद ब्रदर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक सिंह। विवेक सिंह। थैंक यू विवेक। उन्होंने भी हाथ खड़ा किया था एक और। हाँ उनको भी दे दो माइक, इनका भी ट्राई कर लेते हैं। वेंकटा सूर्य नारायण प्रभास राजू उप्पलपट्टी। Yeah. कहाँ से आए आप? सर लाल बहादुर सिंह। कहाँ से आए? लाल बहादुर सिंह से आए हो? मैंने बोला कहाँ से आए आप? सर मैं यूपी से आया हूँ। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में काम करता हूँ। अच्छा जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चाय पिला। It's from income tax. This guy, बाहुबली 2000 करोड़। आई नो सर, दैट्स व्हाई आई एम हियर। Have a look. हम लोग मुफ्त में करते हैं भाई। सर मैं आपका फैन हूँ, इसके लिए आया हूँ। हैं? डिपार्टमेंट की तरफ से मैं नहीं आया हूँ। आज मैं आपका फैन बन के यहाँ पे आया। अरे आई लव यू ब्रदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ऐसे ही फैन बन के ही आना, रेड मारने मत आना कर। प्रभास ने बोला कि ये बिल्कुल करेक्ट है। और कोई मैडम बोला। नमस्कारम। नमस्कार। प्रभास का पूरा नाम है वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू उप्पलपाटी। Yeah. आई एम योर बिग फैन। डार्लिंग। Thank you. आप कहाँ से आई हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से। ओके तो प्रभास सर, प्राइस किसका बनता है, इनका कि इनका? दोनों दोनों का। दोनों का। ओके सो डू वन थिंग, गेट मैरिड टू ईच अदर। अच्छा प्रभास का नाम जितना लंबा है मुझे लगता है एक चेक पे इनका पूरा नाम भी नहीं आता होगा। और पेमेंट भी इनका एक बैंक से नहीं आता, बिकॉज ही इज अ ह्यूज स्टार, तो पेमेंट भी ज्यादा है। तो प्रभास के बारे में हमने सुना बहुत शाय है, सीरियस सेट पे भी शाय रहते हैं बिल्कुल। no. इनफैक्ट उनका एक्चुअली एक मिस्चीवियस साइड, नॉटी और मजाकी साइड भी है। ओके और सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, बहुत मस्ती भी करते हैं। Not like you, sir. नहीं भाई मैं समझ गया, प्रभास वहां पे मस्ती करते हैं जहां पे पैसे मिलते, फ्री में नहीं करते। ये कितना खर्चा हो गया होगा फिल्म पे? तो बहुत महंगी फिल्म लग रही है ये। Yeah, 350 crores. दादा मेरे को कुछ चाय वाय देना, मेरा ना बीपी लो हो रहा है। Well, I hope ये 3,500 करोड़ करे this film. वैसे फिल्म में जो है 2000 करोड़ की चोरी हुई है। हाँ। एक्चुअली प्रभास जैसे एक्टर हैं फिल्म में तो 2000 करोड़ की ही चोरी बनती है। अब 10 करोड़ की आप रखेंगे तो डायरेक्टर बोलेगा 100 करोड़ तो हमारा हीरो ही ले रहा है, तो 90 करोड़ हम क्या जेब से डालें? तो प्रभास, मीट माय फ्रेंड दिनेश। Hello. Hello. sir. Yeah. He used to theft gannas from the truck. You know ganna, sugar stick? Sugar cane. Sugar cane. तेरी अंग्रेजी। Sugar cane. You Sugar know, cane. हाँ। he used to pull the ganna from the running truck. फिर चलते ट्रक से गन्ना खींचता बेसिकली। Sometimes the ganna tied is so tightly कि he run from Noida to Gurugram. My English is over. That's all, my lord. You know, Prabhas sir, your Hindi is still good, but my English is in ICU.
And doctor is saying very little chance. Very little. But you know, I like to speak English. We love to hear you speak English. Thanks guys. श्रद्धा, आपने एक दूसरे को अपनी लैंग्वेज सिखाई कि आपने ट्यूटर रखा हुआ था? इनको तो हिंदी आती है, पर हाँ, मुझे अच्छी बोलते हैं हिंदी पर। मुझे तेलुगु के लिए शुरू में ट्यूशंस लेने थे थोड़े से। Okay. और सिर्फ डायलॉग सीखने के लिए। तो अभी बोल लेती हैं तेलुगु के? नहीं बोल लेती, लेकिन डायलॉग्स मगअप करके एकदम तैयार करके बोल सकती हूँ। तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप मूवी में। मुबारक हो आपको बहुत। Thank you so Lovely. much. Thank you. श्रद्धा, आपने तो बॉलीवुड में तो आप काम करती रहती हैं, अभी आप साउथ में काम कर रही हैं। दोनों इंडस्ट्रीज में क्या फर्क लगता है आपको? कोई फर्क तो ऐसा है नहीं। दोनों इंडस्ट्रीज में पैशन है फिल्में बनाने का। शायद एक हल्का सा डिफरेंस जो शायद है वो ये है कि आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा करके बहुत सॉफ्टली, मतलब रिस्पेक्टफुली सॉफ्टली सब एक दूसरे से बात करते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में अरे वो वहाँ से लेके आओ, अरे ये वहाँ से, अरे वो वहाँ से, अरे ये, अरे उसको जल्दी बुलाओ, अरे उसको। तो वो थोड़ा फर्क है। हमारे हल्का मोहब्बत सा। ज्यादा है, अपनापन ज्यादा है ना। पर दोनों में प्यार है, दोनों के बिल्कुल। तरीके अलग है। हाँ, कई लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें ऐसे आप प्यार से बोला तो लगता है जैसे कि आप डांट रहे हो किसी को। प्रभास सर, आप आए हैं तो सबसे पहले तो सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मैंने हम लोग अमेरिका में थे तो तब बाहुबली का पोस्टर देखा हमने, तो वी फेल्ट सो प्राउड। तो मैंने तो एक दो को बोल भी दिया, मैंने कहा आई एम आल्सो इन दिस मूवी। मैंने कहा जब देखा जाएगा तो जब जाएगा मैं कौन सा होऊंगा यहाँ पे, किससे पूछेगा, बोल के तो मैं निकल गया। अच्छा प्रभास सर, हमने एक बात सुनी है कि ये तो हम सब जानते हैं कि आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन हमने एक बात सुनी है आपके बारे में कि आपको शादी के लिए 5,000 से ज्यादा प्रपोजल्स आए। इज इट ट्रू सर? I don't know, sir. Maybe it's a rumor. पर ऐसा हमने ऐसे रिसर्च किया, उसमें बताया गया कि 5,000 से ज्यादा लड़कियां जिन्होंने प्रपोजल भेजे हैं। तो जिनको एड्रेस वगैरह पता होगा, जिनको एड्रेस नहीं पता वो तो कितनी करोड़ों होंगी? में होंगी वो तो। हाँ देखो, हमारे तो एक ही रिश्ता है, हमने उसी से शादी कर ली। देखो हमको भरोसा नहीं था ना कोई दूसरा आएगा, हमने कहा अभी कर लो। अच्छा, आप सब जानते हैं कि जो हमारे फिल्म एक्टर्स होते हैं इनको हर तरीके के, हर उम्र के किरदार निभाने को मिल जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। लेकिन मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि अगर ईश्वर आपको ऐसी शक्ति दे, जैसे कोई कहता है कि मेरा बचपन ज्यादा लंबा हो जाए जी, 30 साल तक मैं बच्चा ही रहूं, या 30-40 साल तक मैं जवान ही रहूं, या मुझे बुढ़ापे में रहना अच्छा लगता है, तो कितने लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं और कौन से पड़ाव को होल्ड करना चाहते हैं? बचपन, जवानी के बुढ़ापा। जी मैम। Hello, Archana ma'am. Hi. Hello, Kapil sir. And hello, everyone. हेलो मैम। Sir, first of all, शुक्रिया। थैंक यू मैम। सर अगर मुझे भगवान ने ये शक्ति दी कि मैं कोई दौर अपने जिंदगी में बढ़ा सकती हूँ, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टीनेज को बढ़ावा दूंगी। अच्छा। जवानी को। उसको क्योंकि किसी ने बोला है हर जवानी की एक कहानी होती है, और टीनेज एक ऐसा दौर है जिसमें एक एनर्जेटिक माहौल होता है वो टाइम पे सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा फ्लर्ट, अफेयर, मल्टी अफेयर। सर यही एज का दौर है जिसमें हम कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं। लीगली? दूसरे एज के दौर में कर तो सकते हैं, मगर चोरी चोरी छुपके करना पड़ता है। वाह, और सर कितने रोमांटिक विचार हैं आपके। थैंक यू वेरी मच। आप अकेली हैं मैम? कहाँ से आई आप? माय हस्बैंड इज विद मी। कहाँ है? भाई साहब क्या बोल रही हैं मैडम? और कोई हमारे दोस्त इस या जी भाई साहब। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। तो सर मैं वो दौर वापस लाना चाहूंगा अपनी जवानी का जब मैं कोर्टशिप में था अपनी। वो क्या होता है? कोर्टशिप वो होता है जब सगाई के बाद का दौर और शादी के पहले वाला दौर। Heavy flirting. Heavy flirting. मतलब पकड़े गए लेकिन जेल नहीं हुई अभी तक। हाँ, अंडर ट्रायल। तो तब ये होता है कि आप अपनी दुनिया में खोए होते हैं। हाँ। आपको दुनिया की सुध नहीं होती, चाहे वो अपने आपके खुद के माँ बाप रहे, दोस्त यार रहे, जितने फोन आते हैं फोन काटते जाते हैं। हाँ। क्योंकि आपका एक ही सपना है कि जो मेरी होने वाली वाइफ है हाँ वो जी। कैसी दिखती है। खैर हाँ। मिले तो है ही जी। कैसे हम समय बिताएंगे जी। और हम कैसे चोरी छिपे मिलेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देना, तो वो एक मीठा मोमेंट होता है
जो कि जनरली ये होता है कि शादी के बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे मध्यम होती जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है सर? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर इसका जवाब तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है। अभी वाइफ आई है आपके साथ में? जी जी, मेरी वाइफ आई है। नमस्कार जी। जी, शी इज माई वाइफ। क्या कंप्लेंट कर रहे हैं इनडायरेक्टली आपकी ये बेसिकली? मेरी कंप्लेंट वो कर ही नहीं सकते। हाँ, घर भी जाना है उनको। कहाँ से आए सर आप? सर मैं नागपुर से हूँ। अच्छा जी। और एक मीठी बात ये भी होती है कि आपकी सालियाँ कैसी होगी, और ये बात होती है कि सर ऊपर वाली की वाहिगुरु की कृपा इतनी है कि लोगों की एक साली नहीं होती और मेरी 4-4 सालियाँ। वो पीछे भाई साहब को वो देना जरा। इनके सालियों के नाम पूछिए आप। आपको क्या लेना देना? आप अपनी वाली पे फोकस करिए ना। He's asking, उनकी सालियों के नाम पूछो। सर देखो। उसकी एक अलग कहानी है, इसलिए उन्होंने कहा शायद। अच्छा। क्योंकि हमारी मतलब मेरी जो साली थी, मेरी वाइफ प्रिया, वो दौर पे वो गाना बड़ा फेमस हुआ था, ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया, तो इसका नाम प्रिया है। अच्छा जी। फिर नेहा का दौर आया तो ये नेहा आ गई। अच्छा जी। फिर उसके बाद दौर चला नैना का, शाहरुख खान ने मूवी की थी हाँ। जिसके अपोजिट में नैना थी, तो ये नैना आ गई। अच्छा जी। फिर उसके बाद डीडीएलजे बहुत फेमस हुई जिसमें थी सिमरन जी, तो ये सिमरन आ गई। फिल्में तो अभी भी बन रही हैं। अंकल रिटायर हो गए लगता है। उसके बाद शाहरुख खान का दौर आया 90s में जी। तो मेरा एक साला है, उसका नाम राहुल है। हाय राहुल। और फाइनली आखिरी साली जिसका नाम किरण है। हेलो किरण। तो नागपुर में और भी लोग रहते हैं कि आप ही की फैमिली है? सर आप बड़ी मजेदार बातें करते हैं। मैं आपकी किसी भी साली जो भी बात कर सकती है मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी जी। ये किनको भी? हाँ हाय सर। हेलो सिमरन। राज की- ये आपको इतना हंसाते हैं आपके जीजा जी घर पे हाँ भी? बहुत। ठीक निकला वो मतलब? एक दिन घर पे आता है और हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। अच्छा, तो जीजा जी के भी भाई हैं? और नहीं, जीजा जी इकलौती तो है। आपके पापा फिल्में नहीं देखते? बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो इस मुद्दे पे बात करना चाहते? जी लास्ट ये कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब? कपिल सर, हेलो। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू ब्रदर। क्या नाम है आपका? रुपेश यादव। रुपेश, क्या कहना चाहते हैं आप? कहाँ से आए आप? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर मैं इसी दौर में रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस दौर में जितनी हम मौज मस्ती कर रहे हैं आगे जाके कुछ भी नहीं हो पाता। क्या कर रहे हो इस दौर में? मेरे को थोड़ा हमें भी बताओ। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ आगे जाके हमें जॉब करनी पड़ती है, घर वाले शादी कर देते हैं, नौकरी करनी पड़ती है। तो आपका शादी करने का मन नहीं है? मेरा कहना ये है कि मैं इसी दौर में रहना चाहता हूँ, जितना अभी इंजॉय कर रहा हूँ उतना Commit शादी नहीं के बाद कर रहा नहीं कर बंदा। पाऊंगा। अरे कपिल सर आप सुनो, हाँ। मैंने अपने आंखों से लाइव देखा, आप मानोगे नहीं, घर के पड़ोस में एक आंटी अपने हस्बैंड को झाड़ू से मार रही थी। बताओ। उनकी गलती सुनो, उनकी गलती ये थी कि वो बस रात को लेट आए थे और अगले दिन उन्हें बहुत पड़ रही थी और एक दिन सब्जी लेने गए और एक भिंडी लाना भूल गए, दोबारा भेजा उनको वहां पे भिंडी लेने के लिए। ये बताओ। चीजें देख के आप डर गए हो? मैं डर गया, मेरे तो शादी पे से विश्वास ही उठ गया। ये बंदा शादी के बाद अच्छा खासा शेर चूहा बन जाता है। बताओ। उम्र क्या है आपकी? सर मेरी 15 ईयर्स है सर, और मेरी एक हॉबी भी है कि सर मैं हिंदी गाने को संस्कृत में ट्रांसलेट करके सर गाना चाहता हूँ, क्योंकि सर हमारे देश से संस्कृत बहुत लुप्त होते जा रही है धीरे धीरे। संस्कृत आजकल कोई पसंद भी नहीं करता। सारे सोशल मुद्दे आज ही उठाएगा ये बंदा। सर ऐसी बात नहीं है सर। सर मैं एक सर आपके लिए गाना तैयार करके लाया, तो सुना सकता हूँ सर आपको? संस्कृत में? हाँ सर सुनाइए। आपने तो वो गाना सुना ही होगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हाँ जी, सुना जी। प्रतिपलमं संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृद्यसि महवार्ता कथ्यानाहरिकम् तम मम 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 एक प्रहणः किं कुर्याम् ब्रह्माणि नित्यानि गायानि नित्यानि तव कृत्यं कुर्याम् शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः शनैः मम हृदयं
चोरियां। ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह यार, ये पप्पू सर। गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली। Sir, hello, sir. Myself, Bacha Yadav, sir. I live here. I'm in the milking business, sir. I take milk from cow, buffalo. I supply people tear milk, make paneer, do what they want. I don't know. Yeah, matlab, my brain is not accept kar raha what my eyes is dekh raha. You know, it's yeah, man. Yo, like, देखिए, सर आप लोगों के लिए हम सिर्फ एक चीज बोल सकते हैं। क्या? एक्शन हीरो हो तो प्रभास जी सा हो, टैलेंट हो, अरे रुके टैलेंट हो तो श्रद्धा जी सा हो, हैंडसम हो तो नील नीतन मुकेश सा हो, 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 ये लीजिए। Oh, sir, you see how multiple level promotion I've done of Bahubali. प्रभास सर, बाहुबली में आपने कैसे हाथी रोका था? Can you stop him also? Sir, can you please keep quiet for like 1 century? Sir, फिल्म का प्रोमो देखे सर, 2000 crore का रॉबरी यू हैव डन, आई सॉ सर। लेकिन अर्चना जी देखने वाला बात है, 2000 करोड़ का रॉबरी करने के बाद आदमी इतना रिलैक्स बैठे हैं जैसे ताजा ताजा जीजा अपने ससुराल में बैठा हो। अबे पैसे रियल में नहीं है, फिल्म में चुराए हैं और पता नहीं है किसने चुराए हैं। इट्स सस्पेंस। सोनी टीवी, हमारा सीधा ना अपना क्या हरिद्वार का या टिकट कटवा दो यार हमारा। आज हमें सत्य की प्राप्ति हुई है, ये बात आप हमको बताते नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। What information are you giving me, bro? I know that much. और प्रभास सर बताइए क्या पेश किया जाए आपके लिए? बोल तो ऐसा है जैसे देवसेना बन के नृत्य करेगा इधर। अगर वो हमारा नृत्य देखना चाहेंगे तो कप्पू शर्मा पहना दीजिए हमें घुंघरू और उठा लीजिए ढोल की अपने हाथों में। अच्छा। और वो बैंड आप हमें डी माइनर दीजिए। आज अगर अपने नृत्य से डी माइनर को हमने डी मेजर ना बना दिया तो खुद बना लेना यार, तुम्हारा सारा जिम्मेदारी हमने नहीं उठा रखा है। नेपोटिज्म से आया हुआ बैंड। नो सर, आई वांट टू टेल यू सर, दिस हैपन हियर। This man from Punjab, he get they from Punjab. They get more from Punjab. Now he even get audience from Punjab. Man come from Nagpur, that also Punjabi. Like Punjab. Sir, यहाँ पे इतना ज़्यादा पंजाबी है, I feel I'm in Canada. बच्चा, तू बड़ा सबके साथ फ्रैंक हो रहा है इधर। हाँ तो फ्रैंक तो होंगे यार। अर्चना जी, हमारा और प्रभास जी का कल्चर काफी सिमिलर है। अच्छा? अरे देखिए, इनके यहाँ अन्ना चलता है, हमारे यहाँ गन्ना चलता है। इनके यहाँ कटप्पा चलता है, हमारे यहाँ कट्टा चलता है। इनके यहाँ एक्शन का हवा है, हमारे यहाँ निरहुआ है। Like he's a Bhojpuri star, but sir, I really feel from my end, you are like a brother from another mother. Sir, वैसे, if you don't mind, I would like to give a multi-million-dollar business idea for you. Oh, big idea. Sir, आपका जो फिल्म बाहुबली, I can dub that film in English.
इंग्लिश आती है तुझे? ये लो यार, कमाल है. Whose tongue is walking? See. Whose tongue is walking? किसकी ज़बान किसका चल रही है? जबान चल रहा है? But sir, I seriously think, give it a thought. Speak to Sir Rajamouli. We can do this project slowly. Because slowly always wins. Fast always furious. And this man sitting here, he is always curious. ये देखिए यार, ये तो अंग्रेजी में शायरी बन गया सर. कहीं हम अंग्रेजों के गुलजार ना बन जाए. गुलजार नहीं, तू झाड़ हो रहा है, झाड़. दौड़ा कर, एक्सरसाइज किया कर. कपूर शर्मा, हर चीज का अगर आपको इतना जानकारी है तो हमें एक चीज बताइए कि अपना डोसा जो होता है ना, हाँ. वो नारियल की चटनी के साथ ही क्यों सर्व किया जाता है? क्यों? नहीं, नारियल के पेड़ के साथ भी सर्व कर दें, पर आप खा पाएंगे क्या? Sir, I keep cracking silly jokes for just माहौल, atmosphere feel good. वैसे श्रद्धा जी, पहले I would like to tell you that हम भी काफी नारियल की तरह ही हैं. मतलब बाहर से सख्त, लेकिन अंदर मोम की तरह नरम. बाहर से सख्त, लग भी रहा है जैसे किसी ने नारियल काट के ऊपर से स्ट्रॉ डाल दी. ओ कपूर शर्मा, हाँ, हम अपनी चोटी के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि जैसे इनके फिल्म में इनका वचन ही है शासन, वैसे हमारी चोटी है हमारा राशन. हमारा सारा बिजनेस हमारी चोटी की वजह से चलता है. चोटी के खिलाफ नहीं, यह समा हम यही समाप्त करते हैं. तखलिया. किसको बोलना तकलीफ? तेरे साथ आया तो है नहीं कोई? नहीं आया? सॉरी, माय अपोलॉजी सर. हम थोड़ा जोश में होते हैं तो बात निकल जाता है सर. बट फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू दैट हमारा महेशमती साम्राज्य जैसा राज्य तो नहीं है यहाँ पे, बट वी हैव वेरी सिमिलर प्रॉब्लम लाइक बाहुबली यूज्ड टू हैव. ही इज भल्लाल देव ऑफ माय लाइफ. Always dancing on my head. And then we have one Rajmata here. ये सिर्फ हंसती हैं, only laughing. और कभी कभी तो हमें लगता है ये कालके की फैमिली से हैं. सडनली बात करते करते बीच में हम सब लोग बाहर चले, रचना थोड़ी देर के लिए इसका चलता रहेगा. ये इसका चलता ऐसे कैसे चलता रहेगा यार? पूरा बात तो करने दो. ये जूलियस जल रहा है. Because such good personality people are sitting here ना, getting very Julius. नहीं सर, I am really सर. नील जी, हम तो कमाल का बात देखिए. नील नितिन मुकेश पर्सनालिटी देखिए, ये आदमी विलन बनते हैं यार. मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड कि अभी आपको कभी किडनैप करना होता है हीरोइन को, तो आपको जाके हीरोइन उठाना पड़ता है, या हीरोइन सामने से फोन करती है कि बहुत टाइम हो गया यार, आओ उठा लो. Such a good looking villain. Oh my God. करने क्या है बच्चा इधर? बार बार यार करने क्या आया, करने क्यों आया, ये क्या आया. अर्चना जी, फ्रॉम द 3rd एपिसोड तब से ही बीन आस्किंग मी ये क्या है, वो क्या है, क्यों आया, क्यों गया. यही जो सवालिया नेचर है ना आपका कपूर शर्मा, उसकी वजह से चैनल को हर बार हर एपिसोड के लिए नए गेस्ट बुलाने पड़ते हैं. अबे ये शो का फॉर्मेट है. ये शो का कोई फॉर्मेट नहीं है सर, ये आपका फॉर्मेट है. सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछते हैं, जवाब आप देते हैं सर. ही गिव एनी प्राइज? दजी? नहीं, आई एम टेलिंग यू सर, दिस मैन क्वेश्चन डे नाइट, क्वेश्चन. इन द नाइट ही वेक अप ऑल्सो, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु. So much question, but you give answer, reply you give. He not give any prize, no money, nothing. He give only tullu. And sir, I'm telling you, same channel, there is Amitabh Bachchan ji sitting in KBC. He ask question. He give you 4 option also. You give answer. He give lot of money.
लीजिए आप जीतता है 1 करोड़ रुपए. He is happy giving 1 crore. Sir, with this guy, he give no money. We poor. Sir, that is why I wear dhoti. Dhoti? Because dhoti have no pocket. Why have pocket when no money? So that's why. Praise my Lord, oh Bahubali. Raja of Mauli. राजा मौली. Please help us. We are extremely poor. We have no money. Our leader does not give us any money. Please, we are cashless. Help us. He's not cashless only, he's necklace also. अभी जा वरना सोनी को बोल रहे थे वो शो लेस करवा दूंगा मैं. अरे अच्छा. नहीं यार. I know. Yeah, bro. सर ऐसा नहीं है ये बोलेंगे हम चले जाएंगे सर ऐसे नहीं जाते हम सर आई हैव अ जॉक्स का पिटारा जॉक सुनाते हैं माहौल बनता है सर आई एम ए लिटिल फनी काइंड ऑफ गाय सो आई विल क्रैक अ जोक नाउ सर ओके प्रेजेंटिंग फर्स्ट जोक सर हमको ये बताइए व्हाट इज ब्लू एंड ऑल्सो नॉट वेरी हैवी नीला क्या है जो भारी नहीं है ऐसे इट इज लाइट ब्लू actually started analyzing things. So what is it? I'm thinking, is it a sky? One more, sir. One more. Shraddha ji, you please focus because this one is a technically difficult. What is the opposite of achar? विचार. अभी आंसर से समझ में नहीं आएगा. The answer is onion. But I tell you how. Achar is also called pickle. The opposite of pickle is piyaj. And piyaj is onion. No. That was indeed technically very difficult. Sir, I'm sorry, sir. Sometimes that don't make sense, but that is life, sir. It always does not make sense. Yeah. All right, bro. Thank you. All right, sir. Thank you very much. Nice meeting you, sir. Please. Bye. Yo. Yo, bro. चलिए चलता है. No. Crazy We amount have of energy. these kind of people also, sir. Crazy. नील एक बात बताइए आप इतने हैंडसम होने के बावजूद जो आपकी पहली फिल्म थी जॉनी गद्दार उसमें आपने विलन का रोल किया था जी तो आपकी फैमिली ने कहा नहीं कि भाई हमने तो हीरो जैसा लड़का पैदा किया था और ये आप उल्टे सुल्टे काम कर रहे हैं विलन बन के. जैसे स्कूल में हम जब किताबें पढ़ते हैं और कहानियां सुनते हैं माँ से जी तो कहानी एकदम जहन में रह जाती है. उसी तरीके से माँ से मैं हमेशा हमारी हर स्क्रिप्ट एक बार मैं माँ से पढ़वाता हूँ तो माँ ने स्क्रिप्ट पढ़ी और माँ एकदम से माँ ने कहा कि भाई ये क्या फिल्म कर रहे हो तुम यार इसमें तुम 5 लोगों को मारने वाले हो तुम विलेन का काम कर रहे हो मुकेश जी के पोते हो तुम. अर्चना जी आपको पता है प्रभास सर को टॉलीवुड में इनको यंग रेबल स्टार बोलते हैं. Oh, why? Why प्रभास सर ऐसे क्यों? My uncle is called Rebel Star, so ऐसा आ गया. So अभी young young नहीं हूँ, but yeah. एक सेकंड. सोनी टीवी जी चौथी लाइन बोल दी प्रभास सर ने. We have enough content. हमारे पास कुछ अफवाहें हैं सर. वी हैव सम रूमर्स जो हमने इधर उधर से सुने हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं. श्रद्धा एक अफवाह ये है कि स्कूल में आप अपनी टीचर को बोलती थी कि मेरे नंबर बढ़ा दो नहीं तो मेरे पापा किडनैप कर लेंगे. Really? ये आइडिया अच्छा है करना चाहिए था. नहीं मतलब आइडिया नहीं आया था. अच्छा तो ये अफवाह है. हाँ. ओके. प्रभास सर ऐसा सुनने में आया है कि आप अपनी फिल्म के रिलीज के दिन सिर्फ सोते रहते हैं. तो जनता ये जानना चाहती है कि क्या रिलीज के पहले पार्टी ज्यादा हो जाती है? No, I'll try to sleep, but I won't get because of the stress.
टेंशन So tension में. तो मतलब काफी हद तक सही है ये अफवाह. Yeah, almost. Yeah. श्रद्धा, प्रभास तो रिलीज से पहले सो जाते हैं. आपके बारे में सुना है कि रिलीज से पहले आपका पेट खराब हो जाता है. क्या ये सही है? टेंशन. तभी लास्ट टाइम जब शूट पे 3 बार गई श्रद्धा. ओके, तो नील, आपकी एक फिल्म आई थी 3G ए किलर कनेक्शन. जी. तो सुना है कि उस फिल्म में प्रोड्यूसर ने कुछ आपका चेक रोक लिया था, इसलिए आपने बदले में 15 किस किए उसमें. चेक रोकने के बाद 15 किस किए? आपने बदले में 15 किस कर लिए. और चेक मिलने के बाद? उसके बाद सुना है कि आप 5G की वेट कर रहे हैं. अभी लॉन्च होने वाला है. ओके श्रद्धा, एक अफवाह ये भी है कि आपके घर पे एक छिपकली है जिसका नाम चमेली. आपने रखा हुआ है. इज इट ट्रू? हाँ, जब मैं छोटी थी एक छिपकली थी मेरे कमरे में. अच्छा. तो मुझे बहुत डर लगता था. तो मतलब मैं कमरे में फिर सोती नहीं थी. तो मेरी मॉम ने कहा उससे दोस्ती कर. दोस्ती क्यों? रेंट पे रहती थी, उसको बोल देते क्या? मतलब दोस्ती कर लिया उसको. दैट्स सो क्यूट. ये कैसे पता है आपको? देख लो, वेरी बिग बजट रिसर्च टीम. ओके. Hey, I want to ask a question to Prabhas. You watch Hindi films? Yeah, I do. So which is your favorite Hindi film of all time? Yeah, many films. Sholay, Dangal. Yeah, a lot of films. And favorite actor in Bollywood? Yeah, I like Shah Rukh and Salman. And actresses, heroines? Deepika, Alia, Katrina. He's very Julius now. प्रभास सर, शी इज मैरिड नाउ. Yeah, very sad. दोनों रह गए. प्रभास सर, एक ऑडियंस का सवाल था. आपके जो फैंस हैं वो बोले थे कि प्रभास सर से पूछिएगा कि अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? I think I'll stop interviews for the industry. बंदे ने पहली बार प्रमोशन किया है फिल्म के लिए. और देखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए. तंग आ गया. ध्यान से देखिए इस इंसान को. वेरी नाइस आंसर. अर्चना, आपको पता है नील बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं. Really? मैंने तो कभी नहीं देखा सुना. अभी देख लो, अभी आएंगे. अरे नील सर, थोड़ा सा मजे के लिए. ठीक है, क्या क्या करना है? जो आपका दिल करे सर. अच्छा, एक डायलॉग तो आप बताइए. 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. संजीव जी. अच्छा, सो संजीव कुमार जी हैव टू से दिस टू रमेश बाबू. हाँ. अच्छा, ओके. 2 चुटकी सिंदूर. दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जाने. कपिल बाबू. थैंक यू. और One more. अगर ये सेम डायलॉग अगर वरुण धवन had to say it, it would be like, Shraddha, can you come in front? That's nice. Because this body language is required. 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. But I think he's got a great style. Thank you. Superb, Neil sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. नमस्कार. देवियों, सज्जनों और साहो के डाई हार्ड फैनो. आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में. इसका नाम है भैल करोड़पति. सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे ब्लॉकबस्टर साहू फिल्म की स्टार कास्ट का. यहाँ पे प्रभास जी वेलकम, श्रद्धा जी वेलकम, नील नितिन मुकेश जी वेलकम. और स्पेशली हमारे इस खेला की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब हमारे साथ ज्वाइन हुआ है महेश मांजरेकर जी. ये खेला में आपके पास 3 लाइफ लाइन है.
फर्स्ट वन बीइंग फोन अ फ्रेंड। खाली चीज यह है कि फोन आपका होगा लेकिन फ्रेंड हमारा होगा। दूसरा है ऑडियंस पोल, जिसमें पोल हमारा होगा, ऑडियंस आपकी होगी। तीसरा है एक्सपर्ट की राय। वो तो अगर एक्सपर्ट आए तो दे देंगे, नहीं आए तो बाय बाय। हेलो हेलो अच्छा हेलो आप फोन उठाओ, हिम्मत है तो। हेलो आज जी राजा मौली साहब, आप आए नहीं। अरे मैंने आपके लिए घर पे मौली वाले परोठे बनाए हुए हैं। साथ में साव का साग भी बनाया हुआ है। आज जल्दी आ जाओ और चलो 2000 करोड़ रुपया लेते आना। क्यों? क्योंकि हम आपके बाहुबली के कब्जे में हैं। बाय। हेलो सर लेट मी इंट्रोड्यूस, ये हैं हमारे एक्सपर्ट। थैंक यू। चाहते तो नहीं है कि एक्सपर्ट हो, लेकिन हैं। ये अरोड़ा साहब। इनके बारे में एक बात बता देते हैं कि जो बंद गोभी है ना, वो खुल के वापस बंद हो सकती है, लेकिन इनका मुंह कभी बंद नहीं होता। एक मिनट। राजा मौली अगेन। हेलो राजा मौली साहब, वो आपके बाहुबली में जो सांड था वो भी हमारे कब्जे में है। फ्री में ले जाओ आके। ठीक है अरोड़ा साहब प्लीज, आज हम मूड में नहीं है, प्लीज माफ कीजिए। हाथ तो ऐसे जोड़ रहा है जैसे मैं रंजीत हूँ, ये बिंदु है। बात कर रहा है। देखिए सर, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना हमारे दूसरे एक्सपर्ट कभी आते ही नहीं है। अर्चना जी 50 तोला, महेश जी 50 तोला, प्रभात जी 50 तोला, श्रद्धा 50 तोला, नील 50 तोला, अंकल 50 तोला, सबका 50 तोला। लेकिन जब इसको तोला तो तराजू खुद बोला 50 क्विंटल। कैसे आप? मस्त एकदम मजे में। आप लोग के पिक्चर में वो भी ना मंदिरा बेदी आए नहीं, वो कोई बात नहीं, उनका टीवी पे बोलता आए मंदिरा। नहीं नाम नहीं ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ मंदिरा। कब तक हम लोग जिम में मिलेंगे? जिम यू नो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मंदिरा जी, इसके साथ मंदिर मत जाना, ये आपको अंदर भेज के आपके जूते चुरा लेगा। क्या अंकल? अरे पापा जी। अरे घबराओ मत, मैं तो आपको जादू की जप्पी दे रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह। क्या बात है। नहीं ओ बाबा, यहाँ पे सब अलाउड नहीं है। झप्पे पप्पे एनीथिंग, फैमिली सो है, अलाउड ही नहीं है। मैं प्रभात जी आपको एक राज की बात बताऊं। वन टाइम लड़की ग्रुप केम टू सी हिम। वो कहते देख तो लेते, लेकिन किस एंगल से देखें। फिर वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, उन्होंने ऊपर से देखे, कहते इधर से भी सेम दिखता है। शट अप, डोंट डिस्टर्ब मी। ए भाई, उधर कुछ है माँ। क्या? माँ कुछ देना, घास लेट देना माँ। मैं अभी देखा हूँ माँ। मेरे को माँ क्यों कर रहा? तेरी माँ की मुझे थी। माँ मेरे को कुछ दिख रहा है, मेरे को स्त्री दिख रही है माँ। स्त्री? नहीं बिल्कुल नहीं, ऊपर बैठो तुम, कोई स्त्री नहीं है। स्त्री से याद आया, श्रद्धा आपकी फिल्म ने 200 करोड़ कमाया। मेरा नुकसान हो गया। क्यों? मैं एक स्त्री के साथ फिल्म देखने गया, उधर लिखा हुआ था स्त्री कल आना, वो वापस चली गई। वो अगले दिन आ गई। अगले दिन आई, मैं अपनी बीवी के साथ फिल्म देख रहा था, मैं पकड़ा गया। वेरी मच मेरा नुकसान हो गया। कुछ है, मैं बोला अंकल क्या हो रहा है? ओ स्त्री कल आना। मैं तो कहता हूँ परसों भी आना। और मैं तो कहता हूँ नरसों भी आना। और 11 बजे के बाद आना, मैं फ्री होता हूँ, मेरे को थोड़ी सी शादी करनी है। श्रद्धा जी सब भगवान से शक्ति मांगते हैं, हम आपसे शक्ति कपूर जी मांग रहे हैं। एक दिन के लिए उनको यहाँ पे लेके आ जाइए, किसी का ढाक की चिक्की एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों ने मुझसे डरना ही नहीं था तो मैं जाऊं क्या अब यहाँ से? मेरी बात सुन, तू जब शीशा देखती तेरे को डर नहीं लगता? देखो तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा भयानक यहाँ पर बैठे हैं। चलो यार तुम। वेरी बैड फेस।
I dislike. Totally. My apology, sir, for the inconvenience. तो इस संवाद के बाद हम खेला शुरू करते हैं। खेला शुरू करने से पहले सर एक और जरा जोक्स दिमाग में आया है, थोड़ा सा बोलते हैं। सर आपने ये फिल्म बनाया वास्तव, तो इंडिया में बनाया तो वास्तव, ठीक है। यही फिल्म अगर आप श्रीलंका में बनाते तो फिल्म का क्या नाम होता? क्या होता? श्रीवास्तव। बहुत फनी है ये तो। सॉरी सर, थोड़ा मजा आता है इसलिए बोल देते हैं। तो सर सबसे पहला सवाल 9,999 रुपए TDS काट के हमने फिगर बनाया है। तो इतने रुपए के लिए पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल यह है सर कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इट्स यूनिवर्सल क्वेश्चन एवरीबॉडी। ऑप्शन ए, कटप्पा बाहुबली के हेयर स्टाइल से जेलस था, इसके लिए मार दिया। ऑप्शन बी, कटप्पा शादी करना चाहता था लेकिन उसको डर था कि बाहुबली औरत पर हाथ डालने वाले का गला काट देते हैं, बोला बाहुबली को ही रास्ते से हटा दो। मे बी। ऑप्शन सी, कटप्पा शायद बाहुबली की मां शिवगामी देवी को चाहते थे लेकिन बाहुबली ने उनको मामा बना लिया था, तो कटप्पा का जो है वो पूरा सेटिंग खराब हो रहा था। मे बी, यू नेवर नो। ऑप्शन डी, सर ऑप्शन डी हम रखे नहीं है। क्या है कि अमेंद्र बाहुबली जी नहीं रहे ना, तो इसलिए फिर हमने एक ऑप्शन जो है वो मौन रखा है। अच्छा, हमने मॉर्निंग के लिए रखा हुआ है। दिस ऑप्शन इज नॉट एग्जिस्टेंट। तो पहले 3 में से आपको चूज करना पड़ेगा। एक्सपर्ट की राय आप ले सकते हैं। एक्सपर्ट, यू वांट टू गिव राय? ये तो हमसे राय ले लेंगे, हम आगे किनसे ले? हमारे पीछे कोई है नहीं। आप कुछ बोलना चाहेंगे संजय दत्त साहब? जी हाँ, बैठ जाइए यार। अच्छा मेरे एक बात सुनिए बच्चा यादव, सुने तुम्हारे अंदर सेट लगा हुआ, अंदर शूट भी करते हो तुम लोग। यार हमेशा बकवास। इतने बड़े स्टार है, प्रभास से मेरे को बात करने दो। प्रभास सर, वन क्वेश्चन था मेरे को आपसे। जब भी कोई औरत पे हाथ डालता आप उसका गला काट देते है ना? मेरे को अपना कुर्ते का गला कटवाना था, मैं किस पे हाथ डालूं? क्या आपके चरण कहाँ है यार? कहाँ थे आप? क्या बात किए? कहाँ थे आप? मैं अंदर घपाघप पाव भाजी खा रहा था, भूख लगी थी ना मेरे को। क्या बात कर रहे हैं यार? सर इनके Dislike him. इनके घपाघप को इग्नोर करके जवाब दीजिए। बताइए आपके हिसाब से सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बी, सी। ए। लेट मी चेक सर। सही जवाब! सही जवाब! क्या कर रहे हैं? बाबा इसकी धोती फाड़ दो, ये बहुत डराता है। सही जवाब है तो सही जवाब करने की क्या जरूरत थी? आराम से बैठ के बात करना। तो आप भी बैठिए। इतना डराता है, मैंने तो डायपर भी नहीं लगाया हुआ। आपका जवाब बिल्कुल साहू है। साहू? तो आप जीतते हैं 9,999 रुपए की रकम जो हम आपके बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन हमें पता चला है कि आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 2,000 करोड़ का चोरी करके आपने कुछ मैनेज किया है। इतना पैसा है, वी आर पुअर, ये पैसा हमको दे दीजिए, ठीक है? तो हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये जाता है हमारे फंड में। थैंक यू वेरी मच सर। सुदीप सर, आपको तो प्रमोशन करने की आदत नहीं है ना, उधर करते नहीं है? किधर सर? साउथ में कहाँ करते प्रमोशन फिल्मों की? फिल्म आ गई बस इतना काफी है फैंस के लिए। इसका कोई जवाब दूं? नहीं आई मीन इसके पीछे कुछ तो है। नहीं जो कुछ आप नहीं रख रहे हैं अंदर। अरे नहीं, तो अभी फेंक दीजिए बाहर। नहीं सर ऐसा कुछ। वो तेरे सवाल से डर रहा है। ये कुछ बोलेंगे। इतना डाउट इसके ऊपर, इतना डाउट सबको क्यों ऐसे लगता है? अभी सडनली कॉन्शियस हो गया कि क्या सोच रहा है? सर क्या है, अगर ये स्ट्रेट आते हैं तो कपिल शर्मा शो नहीं होता ना। अच्छा, पहलवान के ट्रेलर से साफ दिखाई दे रहा है कि सुदीप सर जो हैं वो पहलवान हैं और अन्ना जो हैं उनके गुरु का रोल निभा रहे हैं। पर ना और भी तो कुछ चीजें होंगी फिल्म में, आई मीन बहुत सारी चीजें होंगी जो आप बताना चाहते हैं इस समय फिल्म के बारे में। आई थिंक इमोशनली बहुत पावरफुल फिल्म है।
एक गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है, जो रोमांस है फिल्म में। देखिए, एक पहलवान हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य जो है वो हमेशा सदा ब्रह्मचारी रहे। जी। तो वो रोमांटिक एंगल भी एक बहुत ही पावरफुल एंगल है कि क्या होता है, क्या टर्मोइल है फिल्म में, और मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है ये। एक जेन्युइनली मैं कहता हूँ कि एक ऑल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो हर जो बच्चा है, हर जो लड़का है जो स्पोर्ट्स से जुड़ा रहना चाहता है, आई थिंक उसकी कहानी है ये। बहुत ही खूबसूरत है। तो ये फिल्म जो है 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। 5? वाह। सुदीप सर, आपको 5 लैंग्वेजेस आती हैं? मलयालम नहीं आता। मलयालम नहीं आती, बाकी सारी आती हैं। या दैट्स माय वाइफ्स लैंग्वेज। आपने जानबूझ के नहीं सीखी? नहीं, वो क्या होता है सर, देयर फैमिली इज क्वाइट ह्यूज जी। जब भी उधर जाते हैं तो बिना सबटाइटल्स के कुछ आता नहीं है अभी, तो ठीक ठाक है, बेटर रहते हैं, वो भी बेटर रहते हैं सर, इशारे से हो जाता है काम। अच्छी बात है। बीवी की लैंग्वेज सीखो ही मत, वो क्या बोल रही है घर में, लड़ाई क्लेश की कोई संभावना ही नहीं। जैसे आपको इतनी सारी लैंग्वेज आती हैं, मुझे 2.05 लैंग्वेजेस आती हैं ना। 2.05? जी। तो 0.5 क्या है? जैसे एक हिंदी, एक पंजाबी, 0.5 इंग्लिश। मेरे 2.05। पर ये सोच के कितना मजा आ रहा है कि अन्ना और सुदीप सर जो है वो 5 लैंग्वेज में जो आपको डायलॉग सुनने को मिलेंगे। अन्ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं अलग अलग जगह से आते हैं, गुजरात से आते हैं, पंजाब से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। कितने यहाँ पे लोग हैं जो अलग अलग भाषा में, अन्ना का एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ऐसे है ना, मस्ती के लिए हम लोग। जी अन्ना, सुदीप सर आप प्लीज विराजमान हो जाइए। कोई है जो अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना। जी, तो सबसे पहले जिन्होंने हाथ खड़ा किया, भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज राजपूत है। मनोज राजपूत, गुजरात राजकोट से आया हूँ। अच्छा जी, वाह जी। गुजराती में मैं सुनील सर का डायलॉग बोलना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। ए अंजलि, હું તને ભૂલી જાઉં એ થઈ નહીં શકે, અને તું મને ભૂલી જાય એ હું થાવા નહીં દઉં। ये शक्ति जी और मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया है ना, अभी उससे निकलना मुश्किल हो गया। कभी कभी मैं भी खुद ऐसे ही बोल देता हूँ कि लेकिन गुजराती में नहीं बोला है। नहीं, हमारे गुजराती में ए आता है ना, ए तो बोल, ए बोल। मैं बोला ना पहले, ए अंजलि। तू ए नहीं बोला, ए बोला। तो लास्ट में बोला। ए वो अलग भाषा था, ए की भाषा पकड़। क्या करते हैं मनोज जी आप? अकाउंटेंट हूँ मैं। अकाउंटेंट हो आप? बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जिन्होंने हाथ खड़ा किया था? जी मैडम, आप कहाँ से आए मैम? काफी लोगों ने ये जैकेट पहनी हुई है, लाइफ सेविंग जैकेट। हम लायंस क्लब से आए हैं। लायंस क्लब कहाँ से? लायंस क्लब बॉम्बे। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कितने लोग आए हैं लायंस क्लब से? हम 50-60 लोग हैं। अरे वाह, बहुत सारे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आप अन्ना का डायलॉग बोलने वाली हैं? हाँ जी। किस भाषा में? तमिल भाषा में। ओह जी। अंजलि, நான் உன்னை மறக்க முடியாது, நீ என்னை மறக்கவே, நான் உன்னை மறக்கவே விட மாட்டேன்। अन्ना, आपको आती तमिल? सुदीप सर आपने समझा? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। ऑलमोस्ट। पर जितने प्यार से आपने बोला ना, अंजलि 10 रुपए देके जाती कि ये लो। I think Anna should try what the lady did in Tamil. हाँ अन्ना, So much of तमिल। अंजलि, अंजलि, ए अंजलि, ए अंजलि, நான் உன்னை மறக்கவே முடியாது, நான் உன்னை மறக்கவே முடியாது, முடியாது, உன்னை நான் என்னை மறக்க விட மாட்டேன், अन्नै நான் மறக்க முடியாது। पंजाबी में सुनने का असर रहता है, ओने नान जिन्ने तू खादे ओने मैं खादे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो ये डायलॉग बोलना चाहते हैं? यहाँ पे काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया था, इस तरफ भी हैं जी। मैं निधि, रिधि। हरियाणवी में आपको। अच्छा, जी, मजा आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। रे छोरी अंजलि, मैं तन्ने भूल जाऊं ये हो को नहीं सके, और तय मन्ने भूल जाए या मैं होन को नहीं दूं। अब यही किच्चा बोलेंगे जो आपने बोला।
टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स रे छोरी अंजलि रे मैं तन्ने भूल जाऊं होल्ड ऑन अच्छा ओके होल्ड रे छोरी अंजलि रे छोरी अंजलि रे चोरी अंजलि चोरी मैं अंजलि तन्ने भूल जाऊं मैं तन्ने भूल जाऊं ये हो को नहीं सके ये हो को नहीं सके और तय मन्ने भूल जाए तय मन्ने भूल जाए और तय मन्ने भूल जाए और तय मने होल्ड ऑन और तय मन्ने भूल जाए और तय मने भूल जाए यो मैं होण कोणिंदू यो मैं होण कोणिंदू यो मैं होण कोणिंदू वही अब आप समझे ना मैं मलयालम क्यों सीखा 2 मिनट में कैसे हाँ रूप ही चेंज हो गया पूरा। शिष्य से गुरु वो तन्नम और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हाँ जी हेलो कपिल सर। अच्छा पहले तो मन में ही बोल गए थे। हेलो सर। हेलो मैम। नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी। सर मैं पंजाबी में डायलॉग बोलना चाहता हूँ। अच्छा जी बोलिए। हाँ जी। अंजलि। हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। हाँ जी। अंजलि जी। हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਆ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। पंजाबी तो बोल नहीं सकते लेकिन वो जो अंदाज होता है ना पंजाबी ओए अंजलि मैं तन्नू ना अंजलि मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता तू मैनू भूल जाए मैं तेरे प्यो नू चक लेना। कहाँ से है ब्रदर आप? सर मेरा नाम सोनू है बठिंडे तो आई रामपुरा फूल। अच्छा जी बठिंडे से बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया बहुत धन्यवाद। अच्छा किया आपने बहुत अच्छा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब हेलो। सर मैं बंगाली में बोलूंगा। अच्छा जी वेरी गुड। अंजलि आमी तुम्हाके भूले जाबो ये होते पारबे ना और तुमी आमाके भूले जा ये आमी होते देबो ना। अंजलि आमी तुम्हाके भालोबासी। ये कहाँ से? They are feeling it more than you. इम्प्रोवाइज देखो अन्ना देखो हमारी ऑडियंस। अच्छा बोला आपने। अच्छा बोला अच्छा बोला थैंक यू शुक्रिया। और कोई है कि खत्म? जी हेलो एवरीवन हाय सर। हेलो। मैं ये डायलॉग भोजपुरी में बोल के दिखाऊंगी। वाह जी बोलिए प्लीज। ए कमलेश तू हमरा के भूल जाए हम ही होए नहीं देबे। कमलेश कौन है? ये कमलेश अभी फंस गई आप। कमलेश कहाँ से आ गया? अंजलि था। सर है एक भाव नहीं देता। हाँ? भाव नहीं देता। कमलेश भाव नहीं देता। भाव नहीं देता। क्या भाव है कमलेश का? कमलेश का नाम क्या है? कमलेश ही है। ओह अच्छा। अच्छा आया साथ में कमलेश आया? नहीं नहीं भाव ही नहीं देता बताई तो। निरवा को बोलूं या रवि किशन को बोल दो काम हो जाएगा। तो इसके माध्यम से आप उनको बोलना चाहती है? हाँ, मैं उसको ताना मारना चाहती हूँ। तो कैमरा देखकर बोलो। ए कमलेश हम तोहरा के भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता है और तू हमरा के भूल जा ऐसा हम होने नहीं देबे। इनके तेवर देख के मुझे तो समझ में आ गया कमलेश भाव क्यों नहीं देता। ये तो कैमरे में से आंख निकालने को बोल रहे हैं। इतनी छोटी सी है लेकिन हाँ। अंदाज देखो वाह। थैंक यू मैम। नहीं वो वैसे कॉम्प्लीमेंट था नहीं। कितना सर आप ट्राई करेंगे कन्नड़ में? कन्नड़ कि मैं तुम्हें भूल जाऊं इन ಕನ್ನಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮರಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ओहो देखो ये एडवांटेज है भारी आवाज का। मेरे को भारी करके बोलना पड़ रहा था तो लोगों ने जोड़ दिया उसमें। अच्छा आप सबको पता है अन्ना का जब हिंदी फिल्मों में डेब्यू हुआ तो भलवान फिल्म से हुआ। अब कन्नड़ फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं अन्ना यहाँ पे भी आप पहलवान के गुरु बने हुए। आपने सोचा हुआ है कोई भी भाषा में फिल्म करूं बनूंगा पहलवानी पहले? ये भी मेरी पहली फिल्म ही है ना। कन्नड़ की मेरी पहली फिल्म है। जन्मभूमि है मेरी लेकिन मैंने कभी कन्नड़ फिल्म की नहीं थी और पहली फिल्म है तो पहलवान और बलवान मैच भी होता है और आई थिंक तमिल में बैलवान तो दोनों को मिक्स भी कर दिए देखा। अच्छा वाह। सो गुड फीलिंग। हमने ऐसा सुना है कि सुदीप सर ने इस फिल्म के लिए 15 किलो वेट लूज किया। इज इट ट्रू सर? जी। कैसे कर लेते सर? मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ 2 किलो कम करने की। 6 साल से। कल मैंने तोला अपना वेट 800 ग्राम ज्यादा निकला। बोल रहे 6 महीने से कर रहा हूँ क्या कर रहे हैं पता नहीं।
मेरे को कुछ कर रहे हैं। मैं कुछ करता हूँ, योगा वोगा करता हूँ थोड़ा बहुत, और बस नहीं होगा सर, कोशिश मत करो सर। अन्ना, जब आपने पहली फिल्मों में डेब्यू किया बलवान से, तब आपकी शादी हो चुकी थी ना? शादी जिस दिन आई थिंक मैंने डिसाइड की कि मैं फिल्में करूँगा, आई थिंक तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि शादी भी करूँगा, क्योंकि 9 साल से अफेयर चल रहा था, माँ बाप रेडी नहीं थे जी। अब माँ बाप रेडी हुए, और फिल्मों की वजह से मैं ये नहीं चाहता था कि शी गेट्स इनसिक्योर अगेन, तो मैंने यही सोच लिया कि पहले शादी कर ले, एंड इट इज़ बेटर, क्योंकि फिर दोनों काम आराम से हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। बड़ी अच्छी बात है। अन्ना, ये बात कहाँ तक सही है कि आप माना मैम से पेस्ट्री शॉप में मिले थे पहली बार? फैक्ट है, दुकान का नाम था पेस्ट्री पैलेस, क्योंकि वहाँ स्नैकी और पेस्ट्रीज वेस्ट्रीज मिलते थे, और बाजू में ही एक वीडियो की दुकान थी। अच्छा। रोज शाम को वहाँ से वीडियो लेने आती थी। अच्छा। और मैं पेस्ट्री के दुकान पे, पेस्ट्री पैलेस ओनली? I met her at पेस्ट्री पैलेस। हम लोग रोज मिलते थे वहाँ पर, मतलब पूरे ग्रुप था। जैकी दादा, हम लोग सब वहीं बैठ के बड़े हुए हैं। 2 पॉइंट्स थे हमारे, एक तो पेस्ट्री पैलेस था और दूसरा स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट? स्कैंडल पॉइंट, क्योंकि तब लड़का लड़की का मिलना यानी वो एक स्कैंडल था आज के जमाने मुंबई जैसे। में ही होता था ना? मुंबई में ही तो होता था। पंजाब में गर्दन पे थप्पड़ पड़ते हैं। नहीं, मुंबई में भी होता था, तो वो हमारे पॉइंट्स थे। आपके प्रोड्यूसर भी है नदीम भाई जो है, वो भी वहीं घुमा करते थे बाइक पे। हाँ, क्योंकि हम लड़कियों के साथ रहते थे तो खुन्नस का लुक भी देते थे, तो वो सब चलता था वहाँ पर। अन्ना, अगर आपके टाइम पे इतना मुश्किल था, अर्चना जी आपके टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ। नहीं, मैंने ऐसे सुना है, मैं एक ही टाइम अरे की मुझे बात कोई कर बता रहा था, कह रहे जमशेद जी टाटा और आप क्लासमेट थे। सुदीप सर, आप जब एक्टर बने उसके पहले से आपको पूरा क्लियर था कि मुझे एक्टर ही बनना है, कि आपने पहले कुछ और चीजें ट्राई की थी? नहीं सर, मैं आया डायरेक्टर बनने के लिए। अच्छा। अच्छा, ये एक्सीडेंटल हो गया। अच्छा। एक्चुअली इंजीनियरिंग पढ़ता था मैं, आई एम एन इंजीनियर। आप भी इंजीनियर? एक और इंजीनियर। आप भी यानी किचा सर, आप इस महीने कोई 11वें गेस्ट हैं जो इंजीनियर हैं। उसके पहले तापसी पन्नू आई, सोनू सूद आए, सुशांत सिंह राजपूत है, सब इंजीनियर हैं। सर कुछ गलत है सर? नहीं, गलत नहीं है, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का FTI या NSD में एडमिशन ना हो, आप इंजीनियरिंग करो, उसके बाद भी आप एक्टर बन सकते हैं। सुदीप सर, अन्ना, कुछ अफवाहें हैं मार्केट में उड़ती रहती ना, हम यकीन नहीं करते। हाँ। हम सामने से कंफर्म करते हैं। तो 5-6 अफवाहें मैं एक एक करके पूछता हूँ। अन्ना, आपके बारे में अफवाह है कि आप अपनी कार में जैक नहीं रखते, क्योंकि टायर बदलने के लिए आप खुद ही गाड़ी ऐसे उठा देते। वो वक्त हमारा था, अब कहाँ है? वो अन्ना, वक्त आज भी आप ही का है। तो मतलब ये अफवाह है ना? अफवाह है, ओके। सुदीप सर बोलते हैं कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में लोग आपको रीमेक किंग बोलते हैं, ये अफवाह है कि सच है? सर किंग ठीक है सर, रीमेक नहीं। रीमेक वो बात करते हैं सर। ओह, ओके। अच्छा अन्ना, एक और अफवाह है, कहते हैं आप और सन्नी देओल दोनों के जो डांस डायरेक्टर हैं वो एक्शन डायरेक्टर है असल में। अभी भी पिटेगा। अच्छा, सही है। और अगर डांस डायरेक्टर भी हो तो हम लोग करते हैं एक्शन जैसे ही। वो हमारी खूबी है। सुदीप सर, एक अफवाह आपके बारे में है कि मक्खी फिल्म के बाद आपने वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया है जिसमें आप मक्खी मारना सिखाते हैं। सुदीप सर, एक अफवाह ये है कि जापान में च्युइंगम के कवर और मोबाइल के कवर पे आपकी फोटो लगी मिलती है। Really? जी सर। Really? हाँ, Wow. इनके फैंस ने वहां पे बहुत सारे ऐसी मर्चेंडाइजिंग है। अन्ना, एक अफवाह है कि आपने महिमा चौधरी की कार में सांप डाल दिया था। गलत। लेकिन वो आज भी सोचती है कि सांप मैंने डाला था। मुझे खुद को सांप से इतना डर है तो मैं कहाँ डालूंगा। पर किसने डाला पर था? ऐसा ये तो पता इंसिडेंट हुआ था और इधर ही फिल्म सिटी में ही हुआ था। पर किसने डाला था? You must be knowing. बारिश आ रही थी, इट वाज रेनिंग लाइक क्रेजी, तो सांप भी बेचा। हाँ, रियल सांप वो इंजन में चला गया था क्योंकि दे नीड हीट ना। तो अन्ना, सांप को कैसे पता इधर इंजन होता है? हीट। अच्छा, हीट की वजह से। हाँ, हीट की वजह से। अच्छा, ये एनिमल बड़े चालू होते हैं, उनको पता होता है सब।
ओके अन्ना, एक अफवाह ये भी है, आपके पास कई बार फोन आ जाता है कि अन्ना जी एक अनशन पे बैठना है, फिर आप उनके बताते हो कि मैं वो अन्ना नहीं हूँ। ओके, ये अफवाह ही है एक्चुअली। अच्छा, अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिनमें हमारे बहुत सारे सुपरस्टार जो हैं वो पहलवान बने हैं। जैसे दंगल में आमिर सर बने हैं, सुल्तान में सलमान सर बने हैं, अभी किचा सर उसमें पहलवान बने हैं। मैं यहाँ बैठी जितनी लड़कियां हैं जो ऑडियंस में, उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या जब आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं या देखती हैं, आपको पहलवान टाइप लड़के पसंद आते हैं कि जो ठीक ठाक हैं, नॉर्मल हैं? आप अपने विचार रख सकते हैं। जी मैडम। हेलो सर। Hello. हेलो मैम। हाय सर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो भी लाइफ पार्टनर हो वो पहलवान जरूर हो। अच्छा जी। क्यों 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 क्यों? आज की जनरेशन के जो ज्यादातर लड़के हैं जी। बहुत लेजी टाइप होते हैं। कुछ भी काम को कहते हैं नहीं आज मैं थका हुआ हूँ या आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। तो जो पहलवान होगा वो काफी एनर्जेटिक होगा, तो मैं उससे घर की सफाई करवा सकती हूँ, सब्जियां मंगवा सकती हूँ। लाइक मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। किचा सर, यू आर लिसनिंग? यस सर। तो आपको पहलवान चाहिए ताकि अपने काम करवा सकें आप? इंग्लिश में उनको पेट कहते हैं। बड़े अच्छे नेक विचार हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। सर, मेरा नाम आंचल है। वो फिर से बोल दीजिए एक बार। आंचल। कैमरा देख के बोल दीजिए। मेरा नाम आंचल है। हाँ, दूर रहिए उनसे। थैंक यू आंचल। अकेली आई हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, जाएंगी भी अकेली? थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन। Hello. मैं निहारिका हूँ और मुझे अपना लाइफ पार्टनर पहलवान ही चाहिए बिकॉज मेरे को मेरा इक्वल चाहिए एज अ पार्टनर। इक्वल? That's nice. फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेंटली और फिजिकली बहुत स्टेबल होते हैं एंड वेरी फिट। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि It's actually a fact. पहलवान Very common मेंटली भी situation. बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होंगे तो ही वो अपनी फिजिकल act कर स्ट्रेंथ पाएंगे। Exactly. ट्रू, वेल सेड। एंड सेकेंडली, अब मेरे को देख ही रहे हैं आप, ऑब्वियसली मेरा अगर पैर वैर मुड़ गया कहीं तो मेरे को संभालने के लिए कोई मुझे पहलवान ही चाहिए होगा। निहारिका, कहाँ से आई आप? दिल्ली से। आप भी दिल्ली से आई हैं? हाँ जी। आप दोनों साथ में टिकट बुक करा लो, सस्ती पड़ जाएगी आपको। निहारिका, क्या करती हैं आप दिल्ली में? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। सिविल सर्विसेज की? हाँ जी। ओह, कल को ये कमिश्नर लग सकती हैं। निहारिका, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप जो भी कर रही हैं उसमें बहुत कामयाब हों। धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू निहारिका। और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी सर। आपको क्या चाहिए अभी? पहला अच्छा विचार पेश करने। हाय कपिल सर। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से ही हूँ, वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। कपिल सर, आजकल पहलवान पर पिक्चरें बनने लग गई। जी। मैं हैरान हूँ लड़कियों की जितने फैसिनेटेड हैं पहलवानों के ऊपर। एक वो दौर था जब हम पहलवानी करते थे। अच्छा जी। शादियाँ नहीं होती थी। ओह। बड़ी मुश्किल से मेरा भी जोड़ तोड़ होके मम्मी पापा ने एंगेजमेंट किया। अच्छा जी। शादी हो गई। अच्छा जी। शादी के बाद में लड़की घबरा गई। क्यों? आप मानेंगे नहीं, 2 साल तक मैं मेरी वाइफ से मिल नहीं सका। ऐसे क्यों सर? पहलवान है, डर लग रहा है। हकीकत है। आपको डर लग रहा था? नहीं, मुझे नहीं, वाइफ को डर लग रहा था। मुझे अच्छा क्या डर लग रहा था? मैं तो पहलवान था। तो सर शादी के पहले मतलब आपने मैडम को देखा भी था? नहीं, सवाल ही नहीं लड़की का देखना, मतलब ही नहीं। शादी के 2 साल बाद देखा मैंने हकीकत में। शादी में भी नहीं देखे? नहीं, शादी में हमारे घूंघट होता है। 2 साल के बीच में अगर कोई लड़की खड़ा कर दे तो मैं पहचान भी नहीं सकता था मेरी वाइफ कौन सी है। ये तो अच्छा हुआ सर। तो पक्का आपने अपनी वाली कोई? नहीं, बाद में तो शादी की तो उसी घर में गेंद लाने के लिए तो अपनी वाली ही होगी, वास्तव में अपनी वाली होगी। सर मजा आया आपसे बात करके सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्रिया। और हैं जी मैडम? नमस्ते कपिल सर। नमस्ते अर्चना मैम। नमस्ते जी। जी। क्या हालचाल है, कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अखंडिता शर्मा। तो अखंडिता, फिर क्या विचार हैं आपके? कुछ नहीं, मुझे भी पहलवान पसंद है और मुझे तो कुछ ज्यादा ही पसंद है पहलवान। ज्यादा ही पसंद है पहलवान? क्यों? हाँ सर,
क्योंकि पहलवान बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैंने मूवीज में देखा है। मेरे नखरे भी रहते हैं, तो मुझे पहलवान सब चीज़ों के लिए चाहिए, किसी एक दो या घर का काम वगैरह नहीं करने के लिए चाहिए। तो पहलवान खाते पीते भी रहते हैं, आपको भी खिलाएगा बादाम मैं बादाम। उनके लिए बनाऊंगी ना खाना पीना सब कुछ, जो जो पहलवानों का लगता है। बस मैं पहलवानों की जरूरत है सारी, मतलब उनको सब कुछ पका के दे दूंगी खाने के लिए, और वो भी मेरे सारे नखरे उठाए, जैसे कि मुझे कहीं जाने आने का या चलने का कंटाला या फिर मैं थक जाऊं तो मुझे उठा के ले आ जा सके। जैसे तीसरे माले पे हो तो नीचे जाना है तो सीधा पहलवानों का कॉस्ट्यूम भी अच्छा होता है ना? नहीं कॉस्ट्यूम नहीं। अभी जो आए थे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। उनमें से कोई पसंद नहीं है लाल नीला जो आए थे? तो मुझे बाऊ पहलवान पसंद है। कौन से पहलवान? बाऊ जो पहलवान होते हैं, मैं उनको बाऊ बोलती हूँ, मुझे बाऊ बहुत पसंद है। नाम भी दे दिया इन्होंने। एक्चुअली आपको हंसने का बहुत शौक है, आपको कपिल पसंद आना चाहिए। बट उनकी शादी हो गई। Then you should shift. नहीं, पहलवान ठीक है। यार मेरा रिप्लेसमेंट तो मिल गया तेरे को। खंडिता क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं करती। मैं हंसती रहती हूँ। You can keep her as a junior. Oh my God! आप हमारे शो पे बैठोगे अर्चना जी के साथ? हाँ, यहाँ पर हाल बैठूंगी। पक्का? खंडिता बड़ी हंसमुख हो आप, अच्छा लगा आपको मिलके। Thank you sir. तो अब वक्त है पहलवान फिल्म में एक और अहम भूमिका निभा रही एक्ट्रेस को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड आकांक्षा सिंह। थैंक यू। आइए विराजमान हो जाइए जहां आपका मन करता है। लॉट ऑफ स्पेस। आकांक्षा, मैं सीधा सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, पहलवानों की फिल्म में एक सुंदरी आप क्या कर रही हैं फिल्म में? देखिए, जैसे दाल में तड़के की जरूरत होती है, वैसे फिल्म में हीरोइन की भी तो जरूरत है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है मेरा जी। और फिल्म में 2 तरह के शेड्स निभाने का मौका मिला है। तो पहली कन्नड़ा फिल्म जो 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तो इससे ज्यादा और क्या मांग सकती हूँ। वाह। कहाँ की रहने वाली आकांक्षा? जयपुर। जयपुर की? मैं जाता रहता हूँ जयपुर। कभी जाए तो फोन करिए। मैम को भी लेके आइए साथ में। इतना भी नहीं जाता। 5-6 साल पहले गया था। या मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आकांक्षा जो है बड़ी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तो है ही, साथ में ये फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। Really? यस। अच्छा आकांक्षा, पहले आपने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि आपकी फिजियोथेरेपिस्ट वाली डिग्री देख के उन्होंने रख लिया कि नहीं? नहीं, ऑडिशन दिया था। अच्छा। हाँ, और कन्नड़ा में लाइन भी बोलनी पड़ी थी जाके याद करके, तो बड़ा ही डिफिकल्ट सफर रहा है लैंग्वेज का अगर देखा जाए तो। बाकी नहीं, फिजियोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतने फिट एंड फाइन लोग हैं, क्या जरूरत है फिजियोथेरेपी? मेरे को बड़ी जरूरत पड़ती रहती है फिजियोथेरेपिस्ट की। नहीं, कभी कभी होता कैच आ जाता है मसल में। I know what you want to catch. यार, मैं आपको एक और बात बताऊं अंदर की, आकांक्षा बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। यस। Really? गा लेती हूँ, इनसे अच्छा नहीं गाती और इनसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं गाती। मैं एक और बात बताऊं, सुदीप is a brilliant singer. मुझे अभी भी ये इन्फॉर्मेशन मिली है। इन्फॉर्मेशन Correct. आपको भी मिलता है? I thought only my wife would get information. एक्चुअली सुदीप सर की वाइफ भी यहाँ पे है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कपिल, उनकी बेटी भी है साथ में। हाँ जी, बेटी भी। मैं हैरान हो गया सुदीप सर, अब कितनी बड़ी बेटी? हेलो। Only 15. आप मतलब 15 भी, फिर आप देखो ना, लगता नहीं है कि। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ का वर्जन, हालांकि हमने किचा सर से पूछा नहीं, आपकी मुलाकात पहले कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी? इनका कॉलेज में थी,
अच्छा जी। मेरी तो वुमेन्स कॉलेज थी। अच्छा जी। ये हमेशा उसके बाहर ही खड़े रहते वो अंदर नहीं छोड़ते थे ना मैम, हाँ वरना अंदर घुस जाते। वो बाहर रहना पड़ा सर। वाओ सर, ग्रेट स्ट्रगल सर। सर मतलब देखो आप, एग्जाम पेपर्स में भी ऑप्शंस कम मिलते हैं मैम, हाँ। ये तो ज्यादा था। बट सही ऑप्शन चुना ना यू हाँ सर, अब तो यही कहना पड़ेगा। तो तब ये फिल्में करते थे तभी किचा सर? नहीं, स्ट्रगलिंग एक्टर थे उन दिनों, वो मॉडलिंग करते थे। अच्छा। और मॉडलिंग मैं मॉडलिंग ट्राई करता था, कोई लिया नहीं। अच्छा। या शी इज बीइंग वेरी स्वीट नाउ। मॉडलिंग ट्राई किया करता था, फोटोज पे ज्यादा ध्यान देता था, कोई मुझे लिया नहीं सर। उन दिनों कॉलेज में मैं ड्रामा करती थी। अच्छा जी। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डायरेक्टेड वन ऑफ आवर प्लेज। ओके। तो उनको आसानी से एंट्री मिल गया कॉलेज के अंदर। तो ये ऐसे साथ दोस्ती में- बढ़ी और प्यार हो तो गया। आप किस चीज से इम्प्रेस हुई पहली बार जब इनसे मिली आप? सर फ्री था ना सर। उनके गले की बड़ी फैन हूँ। अच्छा, तो गाना भी सुनाया इन्होंने आपको? जी, वो एक गिटार लाते थे और क्या लाता था सर? कॉलेज आई नेवर टू कैरी गिटार टू कॉलेज एंड ऑल सर। अच्छा। हाँ, थोड़ी दोस्ती बढ़ गई तो लेके गया सर किधर गिटार। तो दोस्ती से कुछ और करना था ना, तो कैसे इम्प्रेस करें। हेलो सर, हाय। आई कौन है तू? मैं उमराव जान हूँ। इन आँखों की मस्ती के देख नहीं रहा मैं मक्खी हूँ। एक तो इतना खर्चा करवाता है प्रोडक्शन का, इतना अच्छा गेटअप लिया, पूछता है कौन है ये। हाय सुदीप सर। हाय। हाउ आर यू सर? पहचाना सर? आपको कैसे भूल सकते हैं यार? हाँ बिल्कुल, जिस मक्खी से पंगा लेकर इन्होंने करोड़ों रुपए छापे, उसको कैसे भूल सकते हैं? हाय। शेट्टी साहब, कैसे आप? फर्स्ट क्लास। उनको की बुला रही? उन्होंने भी मक्खी बनाई है क्या? नहीं, मक्खी नहीं बनाई। हाँ। ये आज सुबह ब्रेड जैम खा रहे थे। अच्छा। तो इनके जैम पे मैं ऐसी लेटी हुई थी और ये मुझे हवा दे रहे थे। हवा नहीं दे रहे थे, तेरे को उड़ा रहे थे। किसी के भी नाश्ते में घुस जाती हो तुम लोग? हाँ, घुसूंगी मैं, क्योंकि ये धरती मेरी माँ है सर। तुम लोगों की वजह से हमारा नाश्ता खराब होता है। कभी चाय में गिर जाती हो, कभी कॉफी में गिर जाती हो तुम लोग। हाँ, क्योंकि हम लोग भेदभाव नहीं करते कप्पू। चाहे गरीब की चाय हो या अमीर की काफी हो, दोनों में ही जाकर गिरते हैं। नो भेदभाव। हाँ, फिर चाय हो या कॉफी हो, दोनों फेंकनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, चाय और कॉफी फेंकते हो, जब दारू में गिरती हूँ तो वो क्यों नहीं फेंकते? आपको पता है, अर्चना जी तो किसी भी चीज में नहीं फेंकती। अच्छा। चाहे कॉफी हो, चाय हो, दारू हो। अरे तेरे को पता है कप्पू, क्या? एक दिन चाय पी रही थी, हाँ। इनकी चाय में मुर्गा गिर गया। मुर्गा। मुर्गा कैसे गिर सकता हो? तो इतना बड़ा होता है। हाँ, तो इतने बड़े पतीले में ये चाय पीती है ना। जैसे ही मुर्गा गिरा है, हाँ। इन्होंने मुर्गे को उठाया, ऐसे चूसा। ओह, 2 किलो का मुर्गा 1.5 किलो का हो गया, मालूम है? अर्चना जी को बीच में क्यों घसीट रही है तुम? हाँ, क्योंकि अर्चना जी और मेरा दुश्मन एक ही है। कौन? वही ठोको ताली। वो आदमी ठोको ताली कर करके मेरे कितने परिवार वाले शहीद हुए हैं। ठोको ताली। तू ऐसे नहीं मानेगी तू। हाय रब्बा। ब्रेकिंग न्यूज, कपिल शर्मा शो पे भांडा फूटा। क्या? कपिल शर्मा अपने शो की आड़ में चलाते हैं रैकेट। भांडा फूट गया तेरा। तो करने क्या आई इधर? एक्चुअली पता है क्या सर, मैं इंसाफ मांगने आई हूँ सर। ये आदमी सबका इंटरव्यू लेता है। अभी एंग्री बर्ड आया, उसका इंटरव्यू लिया। हम मक्खी लोग का इंटरव्यू क्यों नहीं लेता तू? तुम मक्खियों ने किया क्या? हाँ, करते तो ये लोग हैं, हम लोग को तो सिर्फ उस पे बैठना होता है।
बट यू नो सुदीप सर, इन माय करियर एक चीज मैंने सीख ली है कि हर पीली चीज सोना नहीं होती सर। तू लगता है ऐसे नहीं मानेगी, तेरा इलाज करना पड़ेगा, रुक जरा। ब्रेकिंग न्यूज, कपिल शर्मा इतने बड़े शो पे मक्खियां मार रहे हैं, देखो। नहीं कर सकता। सही है। तुम लोग मेरे को मार रहे हो, हाँ। और ढाबे पे हमारे नाम का खाना खाते हो तुम लोग। मक्खी के नाम से कौन सा खाना होता है? दाल मखनी। दाल मखनी, मक्खी की रोटी। वो मक्की की रोटी होती है। अच्छा, अब तू बोलेगा गोविंदा का वो गाना भी नहीं है, मक्खियों से गोली मारे, वो गाना भी नहीं है अभी। आ गई ना अपनी औकात पे, ले आई मामा को बीच, मेरे को पहले से पता था। अच्छा, मतलब पता चल गया मैं कौन हूँ? हाँ, मेरे को पता चल गया। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। सर ये कोई मक्खी वक्की नहीं है इधर, ये सपना ब्यूटी पार्लर चलाती है ये। मैं सर की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए मक्खी बन के आई ली मैं। सर एक्चुअली हमारा ब्यूटी पार्लर है इधर, और हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। हाँ। आपके लिए स्पेशल मसाज है, बॉर्डर मसाज। इसमें क्या? इसमें क्या करते, कस्टमर का कपड़ा उतारते, हाँ। पूरा बॉडी पे तेल लगाते, हाँ। लेकिन बॉर्डर पे मसाज करके बीच का छोड़ देते हम। फिर तेल का क्या करें? फिर उसके बाद संदेशे आते। अच्छा, संदेशे आते बॉर्डर में जैसे आते। हाँ, आते हैं। फिर हम संदेशा खोलते, फिर उसमें लिखा रहता है, ओए गुरु मैं जल्दी आने वाला हूँ। ये मसाज नहीं थी, ये संदेशा था किसी के लिए। और आपके लिए, आप डेब्यू करे ना ये पिक्चर में, मस्त है एकदम। हाँ। टीवी से आप फिल्मों में गए, आपके लिए एक मसाज है, टीवी से फिल्मों में मसाज। अच्छा। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर का कपड़ा उतारते, हाँ। और फिल्मों का तेल लगाते, हाँ। लेकिन पैसा टीवी का लेते, क्योंकि टीवी पे ज्यादा पैसा है तो सबको मालूम है। वरना सर इतना अच्छा एक्टर गोविंदा का भांजा किधर मक्खी बन के थोड़ी बैठेगा, ऐसे थोड़ी रहता। पैसा बहुत रहता। तो मैं अभी चलती है सर, मेरे को ना सोनी को सेट करके उसका मैक्स का भी मसाज करना है, मैं चलती। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.